it's Mansha. Welcome back to my channel, Craftmania. I hope you all are doing good and staying safe at your homes. So, about this video जो हम आज करने वाले हैं, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ एंड आई एम श्योर जब आप प्रोसेस देखेंगे आपको भी उतना ही मज़ा आएगा क्योंकि दिस एक्टिविटी इज़ सो एक्साइटिंग. इट इज़ एनवायरमेंट फ्रेंडली, इट इज़ गोना हेल्प यू एंड इट इज़ really fun and I recommend all of you guys to try it at least once. So let me explain you. वैसे तो आपने टाइटल से पढ़ लिया होगा that today we are going to recycle the old paper and convert it into a new paper, handmade paper, and trust me, the results were like very good, amazing. So इन द रिसेंट मंथ, पास्ट मंथ, मुझे पेंटिंग करने का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हुआ था. सो आई स्टार्टेड पेंटिंग एंड सून आई रैन आउट ऑफ पेपर्स दैट आई हैड एट माई होम. So I wanted to buy new papers. Then I had just this is nothing new. It has been always there. People used to recycle paper and make it. I know it's not new, but मुझे ऐसा लगता है that I am the first person to paint on those papers because मैंने पूरे इंटरनेट पे I have never seen anybody paint on those recycled papers. So I basically made those recycled papers and I painted on them. मैंने ये पेंटिंग्स पोस्ट भी करी है ऑन इंस्टाग्राम. दोज ऑफ यू हु फॉलो मी, यू कैन चेक आउट द इंस्टाग्राम हैंडल विल बी राइट हियर ऑन द स्क्रीन एंड ऑल्सो इन द डिस्क्रिप्शन बिलो. सो वहाँ पे मैं रेगुलरली अपलोड करती हूँ और मैंने बहुत सारी पेंटिंग्स ऑलरेडी अपलोड की है जो मैंने रिसाइकल पेपर पे बनाई हैं. सो प्लीज़ गो चेक आउट. यूट्यूब पे आई अपलोड इट लेस फ्रीक्वेंटली, बट इंस्टाग्राम पे मैं डेली अपलोड करती हूँ कुछ ना कुछ कंटेंट, समथिंग रिलेटेड टू पेंटिंग, क्राफ्ट एंड सम अदर स्टफ. So you can please go and check out that. And for this video, it is a really fun activity. You can involve your family members. The kids can do it really well. So it is an engaging activity, plus it is environment friendly. And I recommend not using plain paper because मैंने ऐसा unused paper use नहीं किया है. All the paper that I used is the one that was waste. पुराना printed paper prints जो printers से निकलते हैं, that or some notes that you have if you are a student, all that paper that is waste, please make sure you use that because here we are saving the environment, we are recycling the paper. There is no point in using already वो paper जो आप वैसे भी use कर सकते हो काम करने के लिए. plain pages, don't use that. Make sure you use the waste paper. And so yeah, let's get into the video and see how I did it because it is a really fun process. So this is the pile of paper that I used. मैंने पूरा एक बारी में pile use नहीं किया था. I used half of this paper that you see on the screen. So here I and my grandfather are cutting the paper into smaller pieces, and one thing that you need to keep in mind is कि इसको आप बहुत small pieces में cut करें, जितना छोटा possible हो सकता है उतना. Otherwise you can soak it for longer hours, like you can soak it for a day, for 24 hours. नहीं तो ये paper अच्छे से decay नहीं होगा, जिसकी वजह से आपको pulp जब आप बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा time लगेगा उसको blend करने में. Now I've let the paper soak in the water for at least 2 hours. उसके बाद हम इसको थोड़ी देर और भी रख सकते हैं अगर आपको लगता है कि आपका पेपर अच्छे से सोक अब्जॉर्ब नहीं किया है अभी वाटर को. उसके बाद हम इसे ब्लेंडर जार में ट्रांसफ़र करेंगे और फिर पानी सारा ड्रेन आउट नहीं करना है, थोड़ा सा पानी उसमें रहने दें और ब्लेंड करते हुए भी थोड़ा पानी एक्स्ट्रा ऐड करते रहें एज़ पर नीड, अगर आपको लगे कि अभी पेपर अच्छे से ब्लेंड नहीं हो पा रहा है तो.
हमारा पल्प रेडी है। जब आप इसको ब्लेंड करें तो चेक करते रहें कि बीच में कोई बड़े लम्प्स ना हो या पेपर के पीसेस ना हो। पल्प एकदम स्मूथ होना चाहिए, परफेक्ट टेक्सचर होना चाहिए पल्प का। Now you have to take a bucket of water and add 3 to 4 spoonfuls of the pulp that we made और उसको अच्छे से मिक्स कर देना है। बट मेक श्योर कि जो आपने बकेट ली है दैट शुड बी बिगर दैन द सीव दैट यू आर टेकिंग। उसके बाद हम एक सीव लेंगे, छलनी जिसको हम बोलते हैं, वो आपके किचन में इजीली अवेलेबल होगी। उसका हम यूज़ करेंगे ये पेपर बनाने के लिए। नाउ विद द हेल्प ऑफ द सीव हम ये पेपर को स्ट्रेन करेंगे। नीचे लेकर जाना है छलनी को इन द बोल एंड देन जेंटली ब्रिंग इट अप, टच इट टू द बॉटम एंड देन ब्रिंग इट अप, ताकि वो जो वाटर में से मटेरियल है, जो पल्प का पार्ट है, वो प्रॉपरली इसमें आ जाए। एंड धीरे धीरे लिफ्ट इट अप और पानी को सारा जो एक्सेस वाटर है उसे ड्रेन कर दे। उसके बाद धीरे धीरे फिंगर्स से उसको जेंटली डैब करें ताकि पानी जो है नीचे स्ट्रेन हो जाए। उसके बाद एक हैंकरचिफ या फिर कोई भी कॉटन का कपड़ा लेकर उसको इसके ऊपर ले डाउन करते हैं और धीरे धीरे सारा पानी, एक्सेस वाटर जो है वो इस हैंकी में अब्जॉर्ब कर लें। जस्ट रिमेंबर वन थिंग कि जब आप उस हैंकी को उतारेंगे, पील ऑफ करेंगे, तो आपको वो काम बहुत ही जेंटली करना है, नहीं तो आपका पेपर ख़राब हो जाएगा और पेपर उसके साथ चिपक जाएगा। तो बहुत ही आराम से धीरे धीरे उतारें उसे। As you can see, I have put it on a cotton cloth. Let it rest for a while and then you will see that the paper has started to form. Then we will remove it. Do not hurry about it, otherwise paper नहीं बनेगा properly. Let it set for a while. So I left it to dry in it for some time. Now most of it is dried. So what I will do is invert it, flip it and tap on it like this. Tap gently and you can see the sheet starts removing. And see, the sheet is removed. Now fix the edges and leave it to dry like this for some time. Pick it up gently on your hand, toss it and then after drying it will be all ready. वीडियो कितना फन था, कैसा लगा? मुझे यकीन है कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा और अगर अच्छा लगा और आपने ट्राई किया तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन से मुझे बताना और इंस्टाग्राम पे भी यू कैन टैग मी, द लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन एंड प्लीज़ चेक आउट माई चैनल फॉर मोर सच कंटेंट. I try and upload weekly content all related to craft, interior designing, viral paper crafts, etc. So you can come to my channel anytime when you feel like doing something creative. Thank you.